अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मल्लन्ना आपाशी प्रोजेक्ट रियासत की आवाम के नाम मानवन, वज़ीर आला KCR ने रिजर्वायर का किया इफ्तिताह। करमन घाट में गौरक्षक मारपीट वाकया, पुलिस पर पथराव, सब इंस्पेक्टर वनस्लीपुरम जख्मी, तीनों कमिश्नर्स ने मुतासरा इलाके का किया दौरा। मजलिस अराकीन असेंबली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। जाली तालीमी सदाकतनामों की फरहमी का रैकेट बेनकाब, 3 मुलजिमीन और 5 सर्टिफिकेट्स खरीदने वाले नौजवान गिरफ्तार, टास्क फोर्स साउथ जोन की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले सिद्दीपेट का दौरा करते हुए वहां पर मल्लन्ना सागर आपाशी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया और पंप हाउस से रियासत के 10 अजला को, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद भी शामिल है, वहां से 50 TMC पानी सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे, जिसका आगाज़ वज़ीर आला ने पंप हाउस से पानी की इजराई करते हुए किया। बाद अज़ां वज़ीर आला ने सिद्दीपेट में दीगर तरक्याती प्रोग्रामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया और अहदेदारों के साथ एक इजलास भी मुनक़िद किया। इस मौके पर वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव के अलावा TRS कायदीन भी मौजूद थे। రాష్ట్రాలు బాగుండాలంటే యావత్తు దేశం నలుమూలల బాగుండాలంటే కేంద్రంలో కూడా ధర్మంతో పనిచేసే ప్రభుత్వం ఉండాలి. దేశం యొక్క పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకొని దేశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రభుత్వం ఉండాలి. కులాల పేరు మీద మతాల పేరు మీద చిచ్చు పెడితే హైదరాబాద్లో IT పెరుగుతుందంటే ప్రశాంతంగా ఉంటే వాతావరణం ఉంటే ఒక ఎకో బిల్డ్ అయితే ఆ పరిశ్రమలు పెరుగుతాయి, సంపద పెరుగుతుంది, భూముల ధరలు పెరుగుతాయి. హైదరాబాద్కు పోతే రోజు కత్తులు పట్టి పొడుచుకుంటారట, మత కల్లోలం జరుగుతుందట, పోలీస్ ఫైరింగ్ అవుతుందట, వారంలో 4 రోజులు కర్ఫ్యూ ఉంటుందట. అంటే ఎవడన్నా హైదరాబాద్కు వస్తాడా? ఈ పరిస్థితి రావన్నా? సభలో ఉన్న వాళ్ళు మీరందరూ ప్రజాప్రతినిధులు కాబట్టి నేను మీ మైండ్లో ఈ మాట పెడతా ఉన్నా. ఇది చాలా దుర్మార్గం, దేశానికి ప్రమాదం, దేశానికి మంచిది కాదు, చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విధానం. కాబట్టి దాన్ని మనం సహించకూడదు. ఆ క్యాన్సర్ను విస్తరించనీయరాదు, ఎక్కడికక్కడనే నలిసి పారేయాలి, తరిమి కొట్టాలి దేశం నుంచి అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి అటువంటి ప్రమాదం ప్రజా జీవితంలో ఉన్నాం కాబట్టి, రాజకీయాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి, ప్రజల కోసం పనిచేయాలనే సంకల్పం తీసుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఏది చేటో దాన్ని నిలదీసి నిగ్గదీసి దాన్ని తప్పకుండా ఎదుర్కొంటాం, దాన్ని బండకేసి కొడతాం తప్ప క్షమించి ఊరుకునే ప్రశ్న లేదు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఆ విధంగా మనమందరం పురోగమించాలి. నేను జాతీయ రాజకీయాలను కూడా ప్రభావితం చేసే దిశగా ముందుకు సాగుతా ఉన్నాను. తప్పకుండా 600 సరే 100కు 100% ఈ దేశాన్ని రుజుమార్గంలో పెట్టడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి సర్వశక్తులు, సకల మేధో సంపత్తిని ఉపయోగించి చివరి రక్తం పొట్టు దారబోసైనా సరే ఈ దేశాన్ని సెటరేట్ చేయడానికి కూడా ముందుకు పోతా అని చెప్పి ఈ శుభ సందర్భంలో మనవి చేస్తూ మీ అందరికీ కూడా नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO 317 की तायीद की और कहा कि इसको लेकर अपोजिशन गैर ज़रूरी और बेबुनियाद गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि इस GO से रियासत भर में जो सरकारी महकमे जात में नए तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं उसमें 95% मुकामी अफराद को ही मुलाजिमतें हासिल होंगी। और इस GO से दूसरा फ़ायदा ये हासिल होगा कि अब तक जिन मुलाजमीन को सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की हासिल नहीं हुई थी वो भी हासिल हो जाएगी। నిజమైన తెలంగాణ కోసం సానుకూలమైనటువంటి వ్యక్తి అయితే మోడీ గారు దాన్ని ఖండించాలి. తర్వాత అతి ముఖ్యమైన విషయం, చర్చ జరగకుండా బిల్లు పాస్ అయిందని చెప్పినాం. మీ సుష్మా స్వరాజ్ గారు మాట్లాడారు, ప్రతి ఒక్క నేత మాట్లాడారు. దానిపైన ప్రణబ్ ముఖర్జీ కమిటీ చేశారు. 32 రాజకీయ పార్టీలో మెజారిటీ 27-28 పార్టీలు సానుకూలంగా లెటర్లు ఇచ్చినాయి. పార్లమెంట్ కానీ, లోక్సభ కానీ, రాజ్యసభ కానీ, శాసనసభ కానీ, శాసనమండలి సభ్యుల్లో ఏమంటారండి, స్పీకర్ గారికి అప్పరెంట్ గా సభలో 3 రాజకీయ పార్టీల 3 సానుకూలంగా ఉంటే
బిల్లు పాస్ చేసేస్తాడు. మోషన్ రిజల్యూషన్ మూవ్ చేసి ఎవరైనా ఓటింగ్కు అడిగితే పాస్ చేస్తారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు మీరే చెప్తున్నారు మా పార్టీ సానుకూలంగా అని చెప్పి బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ బిల్లు పెట్టింది, మీరు మద్దతు ఇస్తున్నారు. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय, कौमी नायब सदर डी के अरुणा, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद और साबिक रुकन खानसास कौंसल रामचंद्र राव के साथ इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी थरुण चौक ने इजलास मुनक्किद किया। बीजेपी कायदीन ने करीमनगर पुलिस की जानिब से सदर रियासती बीजेपी को गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत करते हुए इस बात का फैसला किया कि इस मामले में स्पीकर लोकसभा और सदरनशीन राज्यसभा से मुलाकात की जाएगी और तेलंगाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नुमाइंदगी भी की जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के साथ मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ़ है और बीजेपी की जानिब से कांग्रेस की टीआरएस से दोस्ती की बात का जवाब देने और टीआरएस और बीजेपी के दरमियान खुफिया दोस्ती को आवाम के सामने उजागर करने की वो हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और ब्यारम स्टील फैक्ट्री को तेलंगाना में कायम करने के अलावा सिंगारेनी कॉलेजेस के 2 यूनिट को मरकजी हुकूमत की जानिब से फ़रोग़ करने के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने का भी फैसला किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उत्तर प्रदेश इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रामनगर हल्के के इलाके बाराबंकी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स ने इस मौके पर इंतजामात में हिस्सा लिया। रेड हिल्स डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा और टोली चौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान व दीगर ने जलसेगाह में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का खैर मकदम किया। इस जलसे से बैरिस्टर ओवैसी ने खुसूसी खिताब किया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद। अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब, अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब अपनी बात 2 मिनट में यहाँ पर जनता से हम जा रहे हैं, फोटो खींच लेना। आज फिर से एक बार देवा महादेवा की पावन पवित्र धरती पर उत्तर प्रदेश के हल्के दोमड़ियागंज में मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में मजलिसी कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए घर घर पहुँच कर राय दहिंदों से मुलाकात की और उन्हें मजलिस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करने की तरगीब दी। इस इंतखाबी मुहिम में साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी के अलावा मजलिसी सीनियर लीडर गफ्फार खान और सरगर्म कारकुन सैयद मजहर ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मजलिसी कायदीन मोहम्मद मुबीन के अलावा दीगर ने दोमड़ियागंज के हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात जमालदी, गजपुर और दीगर इलाके जात में पैदल दौरा किया और मोहम्मद मुबीन के हमरा दीगर मजलिसी कायदीन ने मुकामी लोगों से भी मुलाकात की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरक्याती इक़दामात से उन्हें वाकिफ़ करवाया। जबकि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से अक़लियतों के लिए की जाने वाली जद्दोजहद के बारे में भी आवाम को वाकिफ़ करवाया गया।
रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हदूद के इलाके में मंगल की रात उस वक्त कशीदगी देखी गई जब गौ रक्षक बताते हुए नौजवानों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद गाड़ी में सवार अफराद ने उनका पीछा करते हुए उनकी पिटाई कर दी। करमन घाट में वाक़ मंदिर के करीब पेश आए इस वाक़े के बाद बीजेपी कारकुनों ने इसे फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की और वहां पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर माधव रेड्डी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में कर लिए गए हैं। रच्चाकुंडा के करमन घाट में पेश आए वाक़े के बाद मीरपेट पुलिस स्टेशन और सरूनगर पुलिस स्टेशन ने जुमला 5 केसेस दर्ज किए हैं और 7 अफराद को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी के अलावा 3 बछड़े और मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए। पुलिस की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक बछड़े बोलेरो कार में ले जाने वाले अफराद ही ताहाल गिरफ्तार किए गए हैं। ताहम ड्राइवर की शिकायत के बाद मुबैना गौ रक्षक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, जबकि पुलिस फोर्स और गाड़ियों पर पथराव जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुआ है, इस सिलसिले में जुमला 3 केसेस दर्ज किए गए हैं। तीनों कमिश्नरेट्स के कमिश्नर्स ने मुतासरा इलाके का तफसीली दौरा किया और हालात का जायजा लिया। No, ambal na అవసరం లేదు. मोतमद अमूमी मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना की क़यामगाह पर मुनक़िदा एक दुआया इज्तिमा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दुआया इज्तिमा में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दराज़ी उम्र और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए दुआएँ भी की गई। अलावाजी मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्लागुड़ा मंडल के तहत दरख्वास्त गुजारों के मंजूरा 6 शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम भी अमल में लाई। अहमद पाशा कादरी ने आशा वर्कर्स में स्मार्टफोन्स की तकसीम भी अमल में लाई।
रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ज़ेरे इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया। टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे बॉक्स ड्रेन के काम में कुछ तब्दीली की जा रही है। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ से ज़ायद की रकम से नाले के काम की मंजूरी अमल में आई है। रुकन असम्बली ने बताया कि अगर दूसरे नालों के कामों की भी मंजूरी मिल चुकी है और इन तमाम कामों का जल्द भी आगाज़ होगा। इस मौके पर मुताल्लिक़ा महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। एसी साहब को बताया 2 महीने पहले वाटर में स्वास्थ्य है इट विल नॉट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग उधर से भी जाना इधर से भी जाना उधर से दैट इज चेक डाउन होटल में कट చేస్తారు కూడా మన కూడా కట్ చేస్తారు మన కూడా हिम्मत कर लेंगे खत्म आ रहा है बता के अपना पुराना है बस रिंग मैन को मिलाना कोई बस बोल ले आके मिला हां बस ऐसे हां चलेंगे गोली मारो रिंग मैन इज द बाउंड्री ये कंपाउंड वाले भैया उधर आगे थोड़ा काम सब्जा करने वो ऊपर का तालाब था अपरा जो वो पानी ऐसा था आगे हल्का कारवान के मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर GHMC के इंजीनियर इन चीफ जियाउद्दीन साहब और चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट जनाब किशन साहब और उनके तमाम सबऑर्डिनेट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिप्टी इंजीनियर तमाम अहदेदारों के साथ में टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे लिमरा फंक्शन हॉल से लेकर विरासत नगर तक एक बॉक्स ड्रेन का हाल ही में अकबरुद्दीन अली साहब ने इनाग्रेशन करे थे और उसको कुछ अलाइनमेंट चेंज करने के लिए तफसीलात देकर अप्रूवल दिया गया। साथ ही साथ जो आदित्य नगर कॉलोनी से नदीम कॉलोनी को जो पानी आता है उसके लिए भी अलाइनमेंट किया गया और मंजूरी अमल में आई। करीब मैं समझता हूँ 7.5 करोड़ का जो नाला है आज उसकी मंजूरी अमल में आई और साथ ही साथ टोली चौकी शातम नगर का भी एक नाले की मंजूरी अमल में आई और मोती दरवाजे के पास भी एक ड्रेन की मंजूरी अमल में आई और साथ ही साथ बहुदात कॉलोनी लंगरौस अहमद कॉलोनी वहाँ का भी एक नाले को आज बताकर उसकी भी मंजूरी देने के लिए तय किया गया और लंगरौस लक्ष्मी नगर प्रशांत नगर का भी एक बहुत बड़ा ड्रेन था उसको भी इंस्पेक्शन कराकर तफसीलात बताए और साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने संतोषनगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए जाली तालिबी सदाकतनामों की फराहमी के एक रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 3 मुलजिमीन के अलावा जाली सर्टिफिकेट्स खरीदने वाले 5 नौजवानों को भी हिरासत में लिया। टास्क फोर्स के मुताबिक SSC इंटरमीडिएट और मुख्तलिफ डिग्री के जाली सर्टिफिकेट्स भारी रकम हासिल करते हुए फराहम किए जा रहे थे। यादगिरी थिएटर संतोषनगर के करीब MH कंसल्टेंसी के नाम से एजुकेशन सर्विसेज चलाने वाला 30 साला सैयद नवीद उर्फ फैसल इस रैकेट का कलीदी मुलजिम बताया गया है।
एसओटी मलकाजगिरी जोन ने मिलावटी चाय पत्ती की तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया और उस रैकेट में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लेते हुए मिलावटी और नकली पत्ती के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। ग्रीन हिल्स कॉलोनी में जितेंद्र नामी शख्स चाय पत्ती गोदाम चला रहा था जहां ये तैयार की जा रही थी। एसओटी ने मुलजिम को जब्तशुदा अशिया के हमरा नाचारम पुलिस के हवाले किया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। शेख उल तजवीद जामिया निज़ामिया हैदराबाद और मदरसे तालीमुल इस्लाम बल्लागुड़ा मौलाना ख़ारी शेख मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर ख़ादरी इंतकाल कर गए। मौलाना ख़ारी शेख मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर ख़ादरी नाज़िर कुरान मजीद के सिलसिले में पढ़ाई जाने वाली यसरन कुरान के भी मुरत्तिब थे, जो बरसग़ीर में अपनी नौइयत की मुनफरिद काविश है जो सुबह क़यामत तक नाज़िर कुरान मजीद सीखने वालों की रहनुमाई करेगी। मौलाना तादम ज़ीस्त इल्म फ़न की आबियारी में मसरूफ़ रहे। महकमे सिविल सप्लाई के अहदेदारों की जानिब से औज़ान व पैमाइश में हो रही बेकायदगियों की जांच की गरज से दावे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत सिविल सप्लाई ऑफिसर तनुजा की क़यादत में हाशिमाबाद के इलाक़े में वाक़े भारत पेट्रोल पंप पर धावा किया गया और बदउनवानी पाई जाने पर चालानात भी किए गए। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार चारमीनार मोहम्मद असलम, डिप्टी तहसीलदार मलकपेट के कविता के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सिविल सप्लाई ऑफिसर हायर ऑफिशियल्स के मुताबिक कल और आज से 5 टीम्स फॉर्म करे सो है। 5 टीम्स के एक एरिया में एक टीम जा रहे सो है। आज हमारे को OCT दिए सो है चंद्रायन गुट्टा, वहाँ पे BPC SN मोर एंड सन्स आज इंस्पेक्शन करे सो है। वहाँ पे 5 लीटर्स कैन जार जो है सो हम लोग पेमेंट करें, उसमें 4 यूनिट्स ऐसो लेस आए सो है। लेस के ऊपर डिपार्टमेंटल केस ऐसा प्रपोज कर रहे और जो भी एज पर द पेट्रोल पंप का इंस्पेक्शन अनाउंस के प्रकार मुताबिक जो भी इनके अडल्ट्रेशन चेक करें और बाकी के डेंसिटी चेक कर रहे प्रीमिसेस और बाकी के जो भी चेक करने का चेक करके जो भी है इंस्ट्रक्शंस भी वो लोगों को दे रहे सो। मोहम्मद खैसर मोहिउद्दीन साबिक़ सरबराह रूबी DG केबल चारशंबे की सुबह इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा जुमेरात को बाद नमाज फ़जर मस्जिद वज़ीर निसा दबीलपुरा में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन चंचलगुड़े में वाक़ क़ब्रिस्तान में होगी। मोहम्मद खैसर मोहिउद्दीन एक अरसे तक
केबल इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे, जबकि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के भी वो सरबराह थे। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 7702421139 या फिर 9246115540 से हासिल की जा सकती हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मल्लन्ना आपाशी प्रोजेक्ट रियासत की आवाम के नाम मानवन, वज़ीर आला KCR ने रिजर्वायर का किया इफ्तिताह। करमन घाट में गौरक्षक मारपीट वाकया, पुलिस पर पथराव, सब इंस्पेक्टर वनस्लीपुरम जख्मी, तीनों कमिश्नर्स ने मुतासरा इलाके का किया दौरा। मजलिस अराकीन असेंबली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। जाली तालीमी सदाकतनामों की फरहमी का रैकेट बेनकाब, 3 मुलजिमीन और 5 सर्टिफिकेट्स खरीदने वाले नौजवान गिरफ्तार, टास्क फोर्स साउथ जोन की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।